میں نے جیپ کو آگے نکلنے دیا تھا اور درمیان والے ٹرک کو نشانہ بنایا تھا۔ آگے نکل جانے والی جیپ کو نوری اور انگوری نے نشانہ بنایا۔ ان میں سے کسی کی گولی جیپ کے ڈرائیور کو لگی۔ جیپ لڑکھڑاتی ہوئی سڑک سے اتر کر بڑی تیزی سے نشیب کی طرف ڈھلکنے لگی۔ جیپ سے مشین گن کا ایک برسٹ مارا گیا تھا۔ عبداللہ کی گولیاں جیپ کا تعاقب کر رہی تھیں۔ افسر نے جیپ سے چھلانگ لگا دی اور جھاڑیوں میں ایک طرف دوڑ رہا تھا، مگر عبداللہ کی گولیوں نے اسے ڈھیر کر دیا۔ عبداللہ کا نشانہ واقعی بہت اچھا تھا۔ اب ہمارا نشانہ وہ دونوں ٹرک تھے۔ فائرنگ شروع ہوتے ہی آگے والے ٹرک کے ڈرائیور نے بدحواس ہو کر پوری قوت سے بریک دبا دیے۔ ٹرک کے ٹائروں سے چرچراہٹ کی آواز ابھری اور وہ آڑا ترچا ہو کر رک گیا۔ دوسرا ٹرک ڈرائیور بھی بدحواس ہو گیا تھا۔ اس سے ٹرک بے قابو ہو گیا اور ایک زوردار دھماکے سے اگلے ٹرک سے جا ٹکرایا۔ فوجی چیختے ہوئے ٹرکوں سے لڑک رہے تھے۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس دوران کم سے کم 3 فوجی ہماری گولیوں کا نشانہ بن چکے تھے۔ ایک فوجی کو مشین گن سنبھالنے کا موقع مل گیا۔ اس نے فائر کھول دیا، مگر ہماری پوزیشن ایسی تھی کہ مشین گن کی گولیاں ہمارا کچھ بگاڑے بغیر ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئی۔ عبداللہ نے ہینڈ گرنیڈ کی پن کھینچ کر اسے ٹرکوں کی طرف اچھال دیا، مگر وہ دستی بم ٹرکوں سے کچھ فاصلے پر گرا۔ چند اور فوجی سنبھل چکے تھے اور سب مشین گنوں سے اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ فائرنگ میں مزید شدت آئی تو حسن نے دستی بم اچھال دیا۔ یہ بم آگے والے ٹرک کے اندر گرا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بہت سی چیخیں سنائی دی۔ ٹرک کے ساتھ اس میں موجود فوجیوں کے بھی پرخچے اڑ گئے تھے۔ دوسرے ٹرک کے بچے ہوئے فوجی اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ ہمارے سامنے چونکہ بالکل عمودی ڈھلان تھی اور سڑک نیچے تھی، اس لیے نہ ان فوجیوں کی گولیاں ہمارا کچھ بگاڑ رہی تھی اور نہ ہی ہماری گولیاں ان کا کچھ بگاڑ سکتی تھی۔ حسن اپنی پوزیشن سے اٹھ کر دوڑتا ہوا آگے نکل گیا تاکہ ڈھلان کے کنارے پر پہنچ کر نیچے سڑک پر فوجیوں کو نشانہ بنا سکے۔ میں نے چیخ کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ فائرنگ کرتا ہوا دوڑتا چلا گیا اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ سامنے سے چلائی جانے والی کئی گولیاں اس کے سینے میں لگی۔ وہ چیختا ہوا گرا اور ڈھلان پر لڑکتا چلا گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف دوڑا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے رک گیا۔ گولیوں سے چھنی حسن ڈھلان کے کنارے پر پہنچ چکا تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ عمودی ڈھلان کی دوسری طرف گر کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور پھر پتن ہی کی طرف سے 2 اور فوجی ٹرکوں کو دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ وہ ٹرک ابھی بہت دور تھے۔ میں نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو خطرے سے آگاہ کیا اور دوسرے ہی لمحے ہم بھاگ کھڑے ہوئے۔ عبداللہ اور نوری ہم سے آگے تھے۔ انگوری میرے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دوڑتے رہے۔ مجھے یقین تھا کہ تازہ دم فوجی ہمارا تعاقب شروع کر دیں گے اور پہاڑیوں میں ہمیں گھیرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ٹرک ابھی کافی دور تھے اور مجھے اطمینان تھا کہ ہم ان کے آنے سے پہلے کافی دور نکل جائیں گے۔ ہم مسلسل بلندی کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ہمارے سانس پھول گئے تھے، مگر ہم رک نہیں سکتے تھے۔ ہم اس جگہ سے اگرچہ کافی دور نکل آئے تھے، مگر وہاں فائرنگ کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ہم بہت دور نکل آئے، اب فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ انگوری دوڑتے دوڑتے ایک بار گر گئی۔ اس کے گھٹنے پر پتھروں سے رگڑ لگ گئی تھی اور وہ کافی تکلیف محسوس کر رہی تھی، مگر میں اس کا ہاتھ پکڑے دوڑتا رہا۔ ابھی ہم خطرے سے باہر نہیں ہوئے تھے۔ نوری اور عبداللہ اب بھی ہم سے آگے تھے اور پھر نوری بھی دوڑتے دوڑتے گر گئی۔ عبداللہ جھک کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم بھی ان کے قریب رک گئے۔ انگوری نے رائفل پھینک دی اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کے منہ سے کف جاری تھا اور سانس دھوتنی کی طرح چل رہی تھی۔ نوری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھی۔ عبداللہ بھی نوری کے پاس بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ میں بھی انگوری کے قریب ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے پھولے ہوئے سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں زندگی میں اتنا تیز کبھی نہیں دوڑا تھا، لیکن جب موت بھیانک روپ میں تعاقب میں لگی ہوئی ہو تو جسم کی تمام تر قوتیں ٹانگوں میں سمٹ آتی ہیں۔ ہم خطرے سے ابھی زیادہ دور نہیں ہوئے تھے، صرف 5-6 منٹ وہاں رکے اور پھر دوڑنے لگے۔ گھٹنے کی تکلیف سے انگوری کو دوڑنے میں خاصی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ بڑی باہمت لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ میرے ساتھ قدم ملا کر دوڑتی رہی۔ بالآخر ہم اس آبشار کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت تک ہم پھر ہانپنے لگے تھے۔ انگوری اور نوری ندی کے کنارے پر گر گئے۔ میں اور عبداللہ بھی قریب ہی بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ جب سانس کی رفتار کسی حد تک نارمل ہوئی تو میں ندی کے کنارے پر سینے کے بل لیٹ کر کسی جانور کی طرح پانی پینے لگا۔ ٹھنڈے اور شیرین پانی کے چند گھونٹ بھرنے کے بعد ہی میرے حوصلے بحال ہونے لگے تھے۔ ان تینوں نے بھی پانی پیا اور وہیں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ نوری اور عبداللہ ہم سے کچھ دور تھے۔ انگوری گھٹنے کے قریب اپنی ٹانگ دبا رہی تھی۔ پھر اس نے ڈھیلا ڈالا کرتا اوپر کھینچ لیا اور شلوار کا پاجامہ آہستہ آہستہ اوپر کھینچنے لگی۔ اس کے گھٹنے پر کھال چھل گئی تھی۔ خون تو نہیں نکل رہا تھا، مگر وہ جگہ سرخ ہو گئی تھی۔ میری نظریں اس کی زخمی گھٹنے کو نہیں، اس کے سنڈول گلابی پنڈلی کو دیکھ رہی تھی۔ میرا سانس بے قابو ہونے لگا۔ انگوری نے میری نگاہوں کے مرکز اور اپنی کیفیت کو تاڑ لیا اور جلد ہی پائنجہ نیچے کھینچ لیا۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ اپنا گھٹنا دیکھنے کے لیے اس نے بے خیالی میں پائنجہ اوپر کر لیا تھا، مگر اب شرم کے مارے اس کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ اب چلنا چاہیے، اس نے میری طرف سے نظریں چرا کر کہا اور رائفل سنبھال
संभाल कर उठ खड़ी हुई। हम अगरचा खतरे की हद से निकल आए थे, मगर कोई भरोसा नहीं था कि वो भेड़िए हमारा ताकुब करते हुए किसी तरह यहाँ पहुँच जाएंगे। आबशार के नीचे से गुजरकर हम तेजी से चलते रहे। रास्ता अगरचा यहाँ भी बड़ा कठिन था, मगर हमारी रफ्तार में कमी नहीं आई। एक चट्टान पर से कूदते हुए अंगूरी बेख्तियार करा उठी और घुटने पर हाथ रखकर दोहरी हो गई। अगर चलने में तकलीफ हो रही हो तो मैं तुम्हें कंधे पर उठा लूंगा। मैंने उसके करीब रुक कर सरगोशी की। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा, मगर नजरों में गुस्सा नहीं था। अंगूरी की वजह से हमने रफ्तार कम कर दी थी। वो लंगड़ाती हुई आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मजीद 1.5 घंटे बाद हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए। नूरी और अब्दुल्ला उस वक्त हमसे काफी पीछे रह गए थे और गुंजान दरख्तों और झाड़ियों में वो नजर भी नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने बेतकल्लुफी से अंगूरी का हाथ पकड़ लिया था। बाबा अब्दुल फतेह आम तौर पर झोंपड़ी के सामने ही बैठा रहता था, मगर उस वक्त वो नजर नहीं आ रहा था। झोंपड़ी का पर्दा भी गिरा हुआ था। बाबा, अंगूरी ने पुकारा। इस वक्त हम झोंपड़ी से 10 गज के फासले पर थे। हम आ गए बाबा, बड़े जोर की भूख लगी है हमें। झोंपड़े का पर्दा हिला और दूसरे ही लम्हे मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। झोंपड़े से बाबा अब्दुल फतेह नहीं 2 भारतीय फौजी बरामद हुए थे और उनके हाथों में पकड़ी हुई सब मशीन गनों ने हमें जद में ले लिया था। मेरे पूरे बदन में सनसनी की लहर दौड़ गई थी। सीने में सांस रुकने लगा था। वो दोनों फौजी शक्लों से ही वहशी और दरिंदे लग रहे थे। मैं बेहिस हरकत होकर रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो हकीकत है या कोई ख्वाब। झोंपड़े का पर्दा एक बार फिर हिला। 2 फौजी और अंदर से बरामद हुए। उन्होंने अपने दरमियान बाबा अब्दुल फतेह को गिरफ्त में ले रखा था। बाबा अब्दुल फतेह की हालत देखकर मैं लरज उठा। उसका लिबास खून आलूद था। दाढ़ी और सफेद बाल भी खून में लुथड़े हुए थे। नाक से भी खून बह रहा था और पेशानी भी जख्मी थी, जिससे बहने वाला खून चेहरे को तर करता हुआ गले तक जा रहा था। वो दोनों फौजी जिन्होंने बाबा अब्दुल फतेह को दोनों तरफ से बाहों की गिरफ्त में ले रखा था, उनमें से एक लांस नाइक और दूसरा लेफ्टिनेंट था। लांस नाइक की राइफल उसके दूसरे हाथ में थी, जबकि लेफ्टिनेंट का रिवॉल्वर उसके होल्स्टर में अड़सा हुआ था। होल्स्टर का फ्लिप खुला हुआ था। उन दोनों ने बाबा अब्दुल फतेह को आगे धकेल दिया। वो अपने कदमों पर खड़ा न रह सका और लड़खड़ाता हुआ मुंह के बल गिरा। बाबा अब्दुल फतेह को बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उसकी टांग की हड्डी भी तोड़ दी गई थी, मगर आफरीन है उस बूढ़े पर, उसके मुंह से मैंने अभी तक एक हल्की सी कराह भी नहीं सुनी थी। इसके बरक्स उसका चेहरा पुरअज़्म और बूढ़ी आंखों में पुरस्रार सी चमक थी। मैं अभी तक अंगूरी का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए था, लेकिन फिर उसका हाथ इस तरह मेरी गिरफ्त से छूटा कि मुझे एहसास तक न हो सका। अंगूरी चीखती हुई बाबा अब्दुल फतेह की तरफ लपकी, लेकिन एक फौजी की ठोकर खाकर पीछे पलट गई। उसके मुंह से बड़ी खौफनाक चीख निकली थी। फौजी ने उसकी पसलियों में एक और ठोकर रसीद कर दी। वो एक बार फिर चीखी। फौजी ने तीसरी ठोकर मारनी चाहिए तो लेफ्टिनेंट ने इसे रोक दिया। नहीं रतनलाल, वो मायनाखेज अंदाज में बोला, अगर ये मर गई तो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। जरा देखो तो इसे, लगता है भगवान ने इसे अपने हाथों से बनाया हो। ये ठोकरें मारने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए है। इसने अपनी बेल्ट में अड़सा हुआ खंजर निकाल लिया और अंगूरी के सामने जा खड़ा हुआ। मेरे जिस्म में खून की गर्दिश तेज हो गई। मैंने अपनी जगह से हरकत करनी चाहिए, मगर एक फौजी ने बड़ी तेजी से आकर राइफल की नाल मेरे सीने पर रखकर मुझे पीछे धकेल दिया। लेफ्टिनेंट अंगूरी के सामने खड़ा उसके चेहरे को घूर रहा था। अंगूरी ने उसके मुंह पर थूक दिया। लेफ्टिनेंट गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने खंजर की नोक अंगूरी के सीने पर रखकर नीचे की तरफ जोर से झटका दिया। अंगूरी की चीख सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एक लम्हे बाद मैंने आंखें खोली तो मैं एक बार फिर लरस कर रह गया। अंगूरी की कमीज ऊपर से नीचे तक कट गई थी और उसका सीना बरहना हो गया था। शायद तुम अपनी बहन को भी दूसरों के सामने इसी तरह नंगा कर चुके हो, अंगूरी ने गुर्राते हुए कहा। उसके लहजे में खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। लेफ्टिनेंट ने उसके सीने पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अंगूरी चीखती हुई नीचे गिर गई। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी छातियों को नंगा किया है, लेफ्टिनेंट भेड़िए की तरह गुर्राते हुए कह रहा था। अभी थोड़ी देर में ये सारा लिबास तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा और इसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ होगा इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरे ये आदमी कई महीनों से अपने घर से दूर हैं, औरत को तरस गए हैं। तुम जैसी नारी को तो ये लोग चीर फाड़ कर खा जाएंगे। लेकिन वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ और कितने आदमी हैं और कहाँ छुपे हुए हैं। हमारे साथ कोई और नहीं है, अगर होते तो अब तक आ चुके होते। अंगूरी ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मैं अब तक उसे एक कमजोर सी लड़की समझ रहा था। राइफल चलाना और बात थी और इस तरह तशद्दुद का सामना करना दूसरी बात। इसने किसी तरह अपने आप को कमजोर साबित नहीं किया था। तुम बताओ, तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? लेफ्टिनेंट मेरी तरफ घूम गया। उस बुड्ढे का अंजाम देख रहे हो। इसने भी कुछ बताने से इनकार कर दिया था। सिर्फ एक ही बात पर अड़ा रहा कि यहाँ इसके सिवा और कोई नहीं रहता। अगर ये हमें सब कुछ बता देता तो इसका हशर ये ना होता। मगर बड़ा सख्त जान बुड्ढा है, अभी तक जिंदा है। मेरा ख्याल है तुम ऐसी मार बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। जब शरीर पर चोट पड़ती है तो बड़ी तकलीफ होती है। अगर तुम इस तकलीफ से बचना चाहते हो तो अपने साथियों के बारे में बता दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें और इस कबूतरी को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुँचाई जाएगी। मैं अंगूरी की तरफ देखने लगा।
उसने नफीब में गर्दन हिला दी। मैंने लेफ्टिनेंट की तरफ देखा। हमारे साथ कोई और नहीं है। अगर कोई होता भी तो तुम्हें ना बताता कि वो कितने लोग हैं और कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने कहा, क्या तुम ये समझते हो कि इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाकर तुम हमारे हौसले पस्त कर सकोगे? याद रखो अफसर, इस वादी का बच्चा अपनी जान तो दे सकता है मगर तहरीक से गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि इसकी कुर्बानी इस वादी को तुम जैसे भेड़ियों से निजात दिला सकती है। बड़ा घमंड है तुम्हें लेफ्टिनेंट बुराया। देखता हूँ तुम जबान कैसे नहीं खोलते, फिर फर फर बोलने लगोगे। उसने दो फौजियों को इशारा किया। वो अंगूरी को बाहों से पकड़कर घसीटते हुए एक तरफ ले जाने लगे। मैं कांप उठा। मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि वो मेरी जबान खोलने के लिए क्या करने वाले थे। मैं मदहोश निगाहों से इधर उधर देखने लगा। जब हम इस तरफ आ रहे थे तो नूरी और अब्दुल्ला हमसे पीछे रह गए थे और मेरा ख्याल था कि उन्होंने दूर से ही ये सूरत हाल देख ली थी और कहीं छुप गए थे। मुझे यकीन था कि वो कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन मैं परेशान हो रहा था कि इन्हें देर हो गई तो कार्रवाई का कोई फायदा ना होगा। दो फौजी अंगूरी को बाहों से पकड़कर घसीट रहे थे और अंगूरी अपने आप को छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही थी। लेफ्टिनेंट एक तरफ खड़ा दिलचस्प नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। अंगूरी की कमीज फट गई थी जिसे एक फौजी ने खींचकर उसके बदन से अलग कर दिया था। मैंने एक बार फिर अपनी जगह से हरकत करनी चाहिए, मगर मेरे सामने खड़े हुए फौजी ने राइफल की नाल जोर से मेरे सीने पर मारी। मैं लड़खड़ा कर गिर गया। उस फौजी ने एक पैर मेरे सीने पर रख दिया और राइफल की नाल मेरी खोपड़ी से लगा दी। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। मेरी नजर जमीन पर पड़े हुए बाबा अब्दुल फतेह की तरफ उठ गई। अब तक वो बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा था, लेकिन अब उसके जिस्म में हरकत पैदा होती देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। लेफ्टिनेंट बाबा अब्दुल फरीद के करीब ही उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था और बाबा फरीद दोनों हाथ जमीन पर टिकाए आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश कर रहा था। जिस फौजी ने मुझे दबा रखा था उसकी पुश्त भी बाबा अब्दुल फतेह की तरफ थी। वो भी उसे हरकत करते हुए नहीं देख सकता था। मैं कनखियों से कभी बाबा अब्दुल फतेह की तरफ देखता और कभी उस फौजी की तरफ। आराम से पड़ा रहे, हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। फौजी मुझे घूरते हुए भेड़िए की तरह गुर्राया। मैंने एक बार फिर कनखियों से बाबा अब्दुल फतेह की तरफ देखा। वो इस पोजीशन में आ चुका था कि जैसे चीता अपने शिकार पर झपटने को तैयार हो। मैंने सिर्फ एक नजर अंगूरी की तरफ देखा, जो अब भी चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही थी। उसने एक फौजी को लात मारकर दूर गिरा दिया था और इसी लम्हे बाबा अब्दुल फतेह भी चीते की तरह अपनी जगह से उछला। उसका हाथ लेफ्टिनेंट के हौसलों पर पड़ा और जब लेफ्टिनेंट उछल कर मुड़ा तो रिवाल्वर बाबा अब्दुल फतेह के हाथ में आ चुका था। खौफ और दहशत से लेफ्टिनेंट का चेहरा धुआं हो गया। बाबा अब्दुल फतेह एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाता चला गया। रिवॉल्वर से निकलने वाली गोलियां यके बाद दीगरे लेफ्टिनेंट के पेट और सीने में पेवस्त हो रही थी। वो लड़खड़ा रहा था मगर उसने खंजर बाबा अब्दुल फतेह की तरफ उछाल दिया। लेफ्टिनेंट के उछलने और चीखने की आवाज सुनकर वो फौजी भी तेजी से मुड़ा जिसने मुझे दबा रखा था। मेरी तरफ से उसकी तवज्जो एक लम्हे को हटी थी। मैंने राइफल पर हाथ डालकर उसे एक झटके से अपनी पेशानी से हटाया और फिर दूसरा हाथ भी राइफल पर डालकर एक जोरदार झटका दिया। वो फौजी लड़खड़ा कर दाईं तरफ गिरा। तीसरे झटके से राइफल मेरे हाथ में आ गई। मैं बड़ी तेजी से उठकर खड़ा हो गया और राइफल का रुख उस फौजी की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। कई गोलियां उसके जिस्म में पेवस्त हो गई। इसी वक्त दरख्तों की तरफ से भी फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। मैं बाबा अब्दुल फतेह की तरफ लपका, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। लेफ्टिनेंट का फेंका हुआ खंजर उसके हलक में पेवस्त था और वो बेहिस्सो हरकत हो चुका था। मैंने दौड़कर एक दरख्त की आड़ में पोजीशन ले ली। पहले मैं समझा था कि फौजी अंगूरी को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। फायरिंग उन्होंने की थी, लेकिन ये फायरिंग सामने दरख्तों में छुपे हुए नूरी और अब्दुल्ला कर रहे थे। अंगूरी ने जिस फौजी को लात मारकर दूर गिराया था वो उठने की कोशिश कर रहा था कि अब्दुल्ला की गोलियों का निशाना बन गया। दूसरा फौजी अंगूरी को छोड़कर दौड़ता हुआ एक दरख्त की आड़ में पोजीशन लेकर बैठ गया था और नूरी की तरफ फायरिंग कर रहा था। नूरी ने हिमाकत ये की कि फायरिंग करते हुए चीखती हुई आगे की तरफ दौड़ी जहां अंगूरी पड़ी हुई थी, लेकिन वो चंद कदम से ज्यादा आगे ना आ सकी। भारतीय फौजी की एक गोली इसकी पेशानी पर लगी और वो चीखती हुई गिरी। अब्दुल्ला दरख्त की आड़ से निकलकर उसकी तरफ लपका तो वो भी भारतीय फौजियों की गोली का निशाना बन गया। मेरा दिमाग घूम रहा था, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था और फिर अंगूरी की चीख सुनकर मैं होश में आ गया। वो चीखती हुई मेरी तरफ दौड़ी आ रही थी और फिर वो ठोकर खाकर मुंह के बल झाड़ियों में गिरी। इसी लम्हे गोलियों की एक बौछार अंगूरी के ऊपर से गुजर गई। अगर वो ठोकर खाकर ना गिरती तो भारतीय फौजी की वो गोलियां उसे भी छन्नी कर देती। अंगूरी पर फायरिंग करने के लिए उस भारतीय फौजी को दरख्त की आड़ से निकलना पड़ा था। इस तरह वो मेरे सामने आ गया और मैंने फायर खोल दिया। भारतीय फौजी ने भी ट्रिगर दबा दिया था मगर उसकी राइफल खाली हो चुकी थी। उसने राइफल फेंक दी और उठकर खौफजदा अंदाज में चीखता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ, मगर ज्यादा दूर नहीं जा सका। मेरी राइफल से निकलने वाली लातादात गोलियां उसकी पुश्त में पेवस्त हो गई और वो ऊंधे मुंह ढेर हो गया। मैं उठकर नूरी की तरफ लपका
वो भी उठकर मेरी तरफ दौड़ी। वो वहशियाना अंदाज में चीखते हुए मुझसे लिपट गई। मैंने भी इसे अपनी बाहों में लपेट लिया। वो चंद लम्हे चीखती रही और फिर यकायक खामोश होकर मेरी बाहों में झूल गई। वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने अंगूरी को आहिस्तगी से नीचे लिटा दिया। वो ऊपर के धड़ से बरहना थी और इसके सीने पर एक छोटा सा जख्म भी था जिससे खून रस रहा था। मैं कुछ देर उसे देखता रहा। अंगूरी की फटी हुई कमीज एक तरफ झाड़ियों में फंसी हुई थी। मैंने वो कमीज उठाकर जैसे तैसे करके उसके जिस्म पर इस तरह डाल दी कि बरहनगी छुप गई। मैं दौड़ता हुआ अब्दुल्ला के पास पहुंच गया। वो खत्म हो चुका था। चंद गज परे नूरी की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। यूं लगता था कि जैसे आसमान की तरफ देखते हुए पूछ रही हो कि मासूम और बेगुनाह कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले ये जुल्म कब खत्म होंगे। जालिमों के हाथ कौन रोकेगा, मजलूम की दाद रसाई कौन करेगा। मैंने उसकी आंखें बंद कर दी और दोबारा अंगूरी के पास चला आया था। वो एक जुर्रतमंद लड़की थी। मैंने उसकी बहादुरी का मुजाहरा देखा था। मैंने उसे गाजिब दुश्मनों पर मौत बरसाते हुए देखा था। दुश्मन पर गोलियां बरसाते हुए उसकी आंखों में वो चमक दिखाई दी थी जो अज़्म और हिम्मत का मजहर होती है। वो बुज़दिल नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो खूंखार भेड़ियों में इस तरह घिर गई थी कि इसके हवास जवाब दे गए थे। इसने आखिरी दम तक उन भेड़ियों का मुकाबला किया था। अपनी आबरू बचाने के लिए वो होशोहवास की आखिरी हद तक मज़ाहमत करती रही थी और जब वो मेरी तरफ दौड़ी तो उसके हवास जवाब दे गए थे और वो मुझसे लिपट कर बेहोश हो गई थी। मैं घुटनों के बल अंगूरी के पास झुक गया और उसके गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाबी ना हुई तो दौड़कर नदी पर पहुंच गया। दोनों हाथों के प्याले में पानी भरा और अंगूरी के करीब पहुंचकर पानी उसके मुंह पर टपकाने लगा। कुछ छींटे उसके चेहरे पर भी डाले। मुझे दूसरी मर्तबा भी चुल्लू में पानी लाना पड़ा। इस मर्तबा नतीजा खातिर ख्वाह निकला। वो पहले कसमसाई फिर आंखें खोल दी। चंद लम्हे अजीब सी निगाहों से मेरे चेहरे को तकने लगी। फिर उसे सब कुछ याद आ गया और वो उछलकर चीखती हुई मुझसे लिपट गई। वो झटके से जब उठी तो कमीज उसके जिस्म पर से हट गई थी, लेकिन उसे भी अपनी बरहनगी का एहसास नहीं हो सका था। अंगूरी मेरे साथ लिपटी सिसकियां भर रही थी। जिंदगी के इस खौफनाक तजर्बे ने उस पर ज्यादा असर किया था। वो खूंखार भेड़ियों की हवस और मौत का शिकार होते होते बची थी। होश में आओ अंगूरी, मैंने उसकी पुश्त थपथपाते हुए कहा। सब कुछ खत्म हो गया है, अब अपने आप को संभाल लो, हमें अभी बहुत कुछ करना है। उसने अब भी मुझे बाहों के हल्के में कस रखा था। वो गिरफ्त ढीली करके जरा पीछे हटी तो उसे अपनी बरहनगी का एहसास हो गया। वो चीखती हुई उछलकर पीछे हट गई, दोनों हाथ सीने पर लपेट लिए और अजीब निगाहों से इधर उधर देखने लगी। उसकी फटी हुई कमीज करीब ही पड़ी थी। मैंने कमीज उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। इसे तुम पहन नहीं सकती, फिलहाल इसे ही लपेट लो। मैं उठकर दूसरी तरफ देखने लगा। अंगूरी ने वो फटी हुई कमीज किसी तरह अपनी बरहनगी छुपाने के लिए जिस्म पर लपेट ली थी। मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता। अलबत्ता 2-3 मिनट बाद वो मेरे करीब खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने नजरें झुका ली और अपना जिस्म छुपाने लगी। वो बरहनगी पूरी तरह नहीं छुपा सकी थी।